Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is the Yahoo story. So Yahoo story के अंदर बच्चों क्या करते हैं? So you may have used Yahoo for accessing your mails and for chatting. Now read about the people who created it. The World Wide Web contains millions of pages and it is growing more quickly every day. It is likely that hundreds of new pages will be added while you are reading these chapters. No one can say exactly how big the web is at any moment, but it is probably bigger today than any library on earth. तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है बच्चों? इसके अंदर मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर बच्चों, और यहाँ पर इतना जल्दी ये ग्रो कर रहा है जितना सोचा भी नहीं था कभी किसी ने. मीन्स एग्जैक्टली जो हम सोचते थे कि ऐसे मूवमेंट पर ये इतना ग्रो कर जाएगा, इतना किसी ने नहीं सोचा था. उस बेस पर ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बिगर टुडे देन एनी लाइब्रेरी ऑन अर्थ बन चुका है. देन इंफॉर्मेशन इज of no use unless one can find where it is stored and make proper use of it. As the web grows, it becomes more and more difficult to find exactly what you want. One obvious answer is to let a computers the work. There are lots of search engines that use powerful computers and clever software to hunt information on the web. Give them a topic and they give you a list of sites they talk about it. But very often list is too long to be useful. सो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बात की जाए सो बच्चों यहाँ पर नो यूज़ अनलेस मीन्स यहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई हैं जो प्रॉपर आप यूज़ कर सकते हो. सो वेब यहाँ पर ग्रो करता है. मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, ऑब्वियस आंसर क्या चाहते हो, देन उस पर वर्क करता है. और लॉट्स ऑफ सर्च इंजन्स काम करते हैं पावरफुल कंप्यूटर्स के अंदर, एंड वहाँ पर क्लेवर सॉफ्टवेयर इंसर्ट किया गया है जो इन्फॉर्मेशन देता है ऑन द वेब पर, और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग साइट से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. सो याहू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स ऑन द वेब with millions of visitors every day because it uses a different way of searching the internet. Instead of a computer, Yahoo employs people in serve the web. Yahoo's professional service spend all day and looking at the websites. If they think a site good, interesting or important, they add it to Yahoo's guide to on the web. और Yahoo की बात करते हैं तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर साइट्स बन चुका है वेब में. मिलियंस ऑफ विजिटर्स हर दिन यहाँ पर अपना अकाउंट बनाते हैं, सर्च करते हैं इंटरनेट से रिलेटेड. इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर Yahoo यूज़ किया जाता है सर्फिंग करने के लिए, वेब पर सर्फ करना. और Yahoo प्रोफेशनल सर्फर्स होते हैं यहाँ पर जो देखते हैं डेली की डेली अलग अलग वेबसाइट्स को, वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो जाकर काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और उस साइट पर जाकर काम भी करते हैं. So Yahoo is clever because it is so well organized. Many other sites have occupied and copied the ideas of the breaking the web into categories, but none of them is as well organized as Yahoo. In a world of new technology, Yahoo, its strength is human intelligence. Yahoo की बात की जाए तो सबसे क्लेवर है बच्चों Yahoo. वैसे तो इसके डुप्लीकेट और भी चीज़ें आती हैं और भी आइडिया लेते हैं इनसे और बनाने की कोशिश करते हैं इसी कैटेगरी के, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ये, इसलिए इसको क्लेवर भी कहा जाता है. और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से बता पाते हैं. इनकी स्ट्रेंथ एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही बनी हुई है, इवन आप मोर देन भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर बच्चों वर्ड मीनिंग भी दिए हैं, इनको भी पढ़ते हुए चलेंगे साथ में. Yahoo creators Jerry Yang and David Filo met at Stanford University. They both graduated students who stayed on at the university because they did not feel ready for jobs. Today, Jerry says, I wasn't really ready to work. I had a good degree, but I didn't have the experience and I wasn't grown up enough for it. I wasn't even 21, so I looked for the ways to stay in school. David Folius felt the same way. अब जो Yahoo के जो बच्चों क्रिएटर्स हैं तो जिसका नाम है जेरी यांग एंड डेविड फाइलो, तो इनका नाम याद रखेंगे बच्चों, जेरी यांग और डेविड फाइलो. तो दोनों के दोनों क्या सोचते थे, दोनों मिले थे सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में,
और दोनों ग्रेजुएट कर रहे थे स्टूडेंट्स, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर वो सोचते थे कि हमें जॉब नहीं करनी, हमें कुछ और करना है, हमें एक्सपीरियंस चाहिए किसी न किसी चीज़ का। हमारे पास डिग्री है लेकिन एक्सपीरियंस किसी चीज़ का नहीं है, और हमें कुछ करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारी एज भी हो चुकी थी 21। सो आई लुक्ड वे टू स्टे इन स्कूल एंड डेविड फॉलियर, एंड दोनों के दोनों एक ही बात सोचते थे। Both of them soon became the web expert. They spent hours on the internet and their university work began to suffer. This was when Yahoo really started. David and Jerry both became to make the list of their favorite websites. They showed their new discoveries to each other and eventually joined their list together. The result was Jerry's guide to the World Wide Web. अब दोनों के दोनों जल्दी ही बच्चों जो वेब एक्सपर्ट बन चुके थे और बहुत घंटे इंटरनेट पर ही बिताते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे, सफ़र करते थे वहाँ पर, और साथ में रियली उन्होंने स्टार्ट कर लिया था जेरी और डेविड ने मिलकर कुछ काम को। एंड वो जो फेवरेट वेबसाइट्स थी वो बनाते रहते थे, उनको किस तरह से डिस्कवर करना है वो सब चीज़ें देखते रहते थे, और इसका रिजल्ट हुआ कि जो जेरीज गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। सो डेविड एंड जेरी हैड अ टीनी ऑफिस इन अ यूनिवर्सिटी बट एट स्टैनफोर्ड, एंड बोथ ऑफ देम वर स्टिल डूइंग यूनिवर्सिटी वर्क. They wanted to go into the business but did not know what to do or how to do it. They continued their web search in a small way. डेविड और जेरी बच्चों काम तो कर रहे थे, वो एक अपना छोटा सा ऑफिस बना लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर ही, स्टैनफोर्ड के अंदर, और दोनों काम करते रहते थे कंटिन्यूसली, यूनिवर्सिटी का वर्क भी कर रहे थे और दोनों बिजनेस भी करना चाहते थे, लेकिन वो उनको पता नहीं था कि करना एग्जैक्ट है कैसे, लेकिन कंटिन्यू वो वेब सर्च करते रहते थे एक स्मॉल वे के अंदर। But soon things get out of control. There were so many sites that David and Jerry had shortlisted. They felt the urgent need to organize the list. They broke it into categories, and when the categories became too big, they broke them into smaller categories. This is still the way Yahoo works today. Then जल्दी बच्चों उनको चीज़ें मिलने लग गई थी, got out of control, and many sites जो डेविड और जेरी बना चुके थे, शॉर्टलिस्ट कर चुके थे, उन्होंने महसूस किया कि अर्जेंट नीड है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की, लिस्ट बनाना शुरू किया, देन उनको कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू किया, स्ट्रेटेजी बनानी शुरू की, एंड दे ब्रोक देम इनटू स्मॉलर कैटेगरीज, एंड दिस इज स्टिल वे याहू वर्क्स टुडे. It was quickly obvious that lots of people outside their university but also wanted a guide the web. Soon hundreds of people were viewing Jerry's guide every day. They came as a surprise to David and Jerry. They had never thought about an audience, but the guide was a website like any other site. It was on Stanford's network, which was on the internet, so anyone with connections to the internet could look at the guide. And quickly जल्दी से ही बच्चों उन्होंने ऑब्वियस कर लिया था कि बहुत सारे जो लोग आउटसाइड में यूनिवर्सिटी के बाहर रहते हैं उनको भी चीज़ें जाननी होती हैं, तो वो वेब के थ्रू जान सकते हैं, और वो व्यू करते थे जेरीज गाइड एवरी डे, और सरप्राइज होते थे कि डेविड और जेरी की चीज़ों को जानने के लिए, एंड थॉट करते थे अपने ऑडियंस के बारे में, कभी वो सोचते नहीं थे कि किस तरह से क्या करना है, लेकिन गाइड जो थे वेबसाइट पर उसी तरह साइड में सर्च करते हुए चीज़ों को सीखते रहते थे, और ये था स्टैनफोर्ड नेटवर्क के थ्रू. They also realized that his sudden audience was just looking at the guide. It was also suggesting ways to improve it. People started sending in their own favorite web addresses if David and Jerry liked them. They included these sites in the guide. Then they began to ask people to suggest good websites, and the result was a flood of emails. Both Jerry and David found that they loved this attention, and it was often very helpful. They were able to make a guide better, which led no more traffic, more emails and more sites in the guides. And बच्चों उन्होंने लोगों की सलाह भी लेना शुरू किया कि उनको क्या करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट एक गुड होती है उसको सजेस्ट करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने ईमेल किए, जिससे जेरी और डेविड काफ़ी अटेंशन कि लोग हमें प्यार करते हैं, हमारी बातों को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं हमें, और काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. आफ्टर अ फ्यू वीक्स जेरी डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ द साइट्स टू डेविड एंड जेरीज गाइड्स टू वर्ल्ड वाइड वेब, और फिर उन्होंने बच्चों अपनी वेबसाइट का नाम बदलकर जो डेविड एंड जेरीज रखा था अब उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब कर दिया था. Then they decided to have a new name for their web. They thought of many names but couldn't decide on any one name. At first, David only knew that the name had to start with Ya,
Many of his favorite computer programs were Yeah Something because of the authors were often too exhausted to invent an original name by the times they had finished the program. Eventually they decide on Yahoo. They just like the sound of it. So eventually बच्चों उन्होंने decide किया उनका नाम होगा Yahoo और they just like the sound of it. By the winters of 1994, the traffic was so heavy that David remembers that he was hoping it wouldn't grow so quickly. There was not much time to eat or sleep, but this was also the time the world was suddenly mad about the web. David and Jerry began to think that there must be a way to turn all the traffic into the business. Surely it must be worth something. एंड बच्चों यहाँ पर विंटर का जब टाइम था 1994 में तो ट्रैफिक काफ़ी हैवी था एंड उसके बारे में जो डेविड थे वो रिमेंबर कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो जल्दी क्विकली हो पाए एंड यहाँ पर हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसके लिए और ज़्यादा लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। दैन यहाँ पर टाइम उनके लिए पास खाने का नहीं था, सोने का नहीं था, फिर भी वही बच्चों कंटिन्यूसली काम करते जा रहे थे कि उनको कुछ ना कुछ अचीव करना था। एंड डेविड एंड जेरी बिगेन टू थिंक दैट देयर वर मस्ट बी अ वे टू टर्न ऑल दिस ट्रैफिक इनटू अ बिजनेस, कि सारा ट्रैफिक इसमें चेंज हो जाए बच्चों, बिजनेस में चेंज हो जाए एंड श्योरली इट मस्ट बी वर्थ समथिंग। दे थॉट सीरियसली अबाउट सीइंग देयर बिजनेस। अ बिग इंटरनेट कंपनी कॉल्ड AOL was interested in buying Yahoo. It was the world's largest commercial internet service and it wanted a search engine. AOL made the David and Jerry an offer that would make them very rich very quickly. The company also warned them that if they did not sell, they would soon be competing with AOL itself. एंड उन्होंने सोचा बच्चों सीरियसली कि किस तरह से अपने बिजनेस को सेल करना चाहिए, उसके बारे में करना चाहिए। एंड बिग इंटरनेट कंपनी जिनको बुलाया जाता था AOL, अब इंटरनेट में वो चीज़ों को याहू को बाय करने के लिए आ चुकी थी एंड ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके बाद बेस पर AOL ने बनाया डेविड एंड जेरी एन ऑफर यू वुड मेक देम वेरी रिच एंड क्विकली, ताकि वो जल्दी से जल्दी और रिच बन पाएंगे और क्विकली इस काम को कर पाएंगे। लेकिन कंपनी ने साथ में वॉर्न भी कर दिया था अगर वो इन चीज़ों को सेल नहीं कर पाए तो जल्दी ही कॉम्पिटिंग में आ जाएंगे विद AOL इटसेल्फ। डेविड एंड जेरी थॉट हार्ड अबाउट द ऑफर। अब डेविड और जेरी बच्चों इस बारे में ऑफर के बारे में और ज़्यादा सोच रहे थे। दे डिड नॉट वांट टू सेल देयर बिजनेस, और वो अपने बिजनेस को सेल करना नहीं चाहते थे, उन्होंने नहीं किया। सो डेविड एंड जेरी डिसाइड टू स्टे इन कंट्रोल ऑफ याहू। इन अप्रैल 1995 दे बोर्ड $4 million to turn Yahoo into a proper business. Then in March 1996, Yahoo's values was 200 times greater than it had been just a year earlier. David and Jerry were amazed. They had known for some time and they would soon be rich. Both they had never imagined but they would be worth so much. Their small company was now more valuable than some of America's largest airlines, car films and banks. It was a sign that the US public expected great things of the internet. David and Jerry realized that they had started the 21st centuries for years ahead for the rest of the world. एंड बच्चों इन मार्च 1996 में याहू की जो वैल्यू थी वो थी 200 टाइम्स ग्रेटर देन इट हैड जस्ट अ ईयर अर्लियर, उससे ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एंड डेविड और जेरी इसको देखकर काफ़ी अमेज थे और वो समझ चुके थे अगर हम इस पर प्रॉपर अटेंशन देंगे तो ये हमारा और ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा हम इसको एक लार्जेस्ट एयरलाइंस के में चेंज कर पा सकते हैं। तो उन्होंने इमेजिन किया वुड बी सो मच एंड स्मॉल कंपनी इज नाउ मोर वैल्यूएबल बन चुकी थी, जिसमें अमेरिका की लार्जेस्ट एयरलाइंस आ चुके थे, कार फिल्म्स थी, बैंक्स थे, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो चुकी थी। एंड साइन ऑफ US पब्लिक एक्सपेक्टेड ग्रेट थिंग्स ऑफ द इंटरनेट। डेविड एंड जेरी ने रिलीज कर लिया था बच्चों कि दे हैड स्टार्टेड द 21st सेंचुरी 4 years एंड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर से रिलेटेड है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चन ओनली। सो व्हाट डिड डेविड कॉल हिज कंप्यूटर प्रोग्राम इनिशियली, वाई बच्चों? सो जेरीज का यहाँ पर बच्चों जो प्रोग्राम था वो जेरीज वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू बनाया गया। और क्यों? ताकि वो दोनों मिलकर काम कर सके। एक थोड़ा छोटा सा ऑफिस मॉल एक उन्होंने रख दिया था यूनिवर्सिटी में और उसी बेस पर इनिशियली करते हुए काम वो आगे बढ़ रहे थे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन से खुद से करेंगे। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। सो याहू इज अ सर्च इंजन बच्चों। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर द डैश कंटेन्स मिलियंस ऑफ पेजेस। तो कौन कंटेन्स करता है मिलियंस ऑफ पेजेस को? सो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब जिसमें याहू का नाम था तो कंटेन्स करता है मिलियंस ऑफ पेजेस को। नेक्स्ट इज याहू मेल। याहू मेल किसके लिए काम आती है बच्चों?
सो फॉर सेंडिंग ईमेल के लिए। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस टू मैच द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द टेक्स्ट। डेविड एंड जेरी स्टार्टेड गेटिंग मोर एड्रेसेस फ्रॉम देयर ऑडियंस एंड जेरी एंड डेविड बिकेम वेब एक्सपर्ट्स। सो रीअरेंज करना है बच्चों इन सभी सेंटेंस को सीक्वेंस में और लगाते हुए इनको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है ताकि आप एक पैराग्राफ की तरह इनको कंप्लीट कर पाएं। नेक्स्ट है बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द यूज ऑफ याहू। याहू का यूज किस लिए किया जाता है बच्चों? सर्च करने के लिए, मेल डालने के लिए, मेल बनाने के लिए, अपनी आईडी बनाने के लिए आप याहू का यूज करते हो। तो जो जो यूज है वो यहाँ पर आप राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द tenses given in the brackets. Be careful not to change the time being expressed in the sentences. We shall have a party this weekend. So यहाँ पर बच्चों present continuous का use करना है आपको tense में। So आप लिखेंगे we are having a party this weekend. Okay? So इसी तरह औरों को भी complete करेंगे tense के according. Next है change the following sentences of future tense using shall, will or going to. Make necessary changes wherever required. यहाँ पर बच्चों चेंज करना है सभी सेंटेंस को फ्यूचर टेंस के अंदर शैल और विल लगाते हुए या फिर गोइंग टू लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। लाइक आई सो दैट मूवी विद माई फ्रेंड लास्ट वीक। सो यहाँ पर आई शैल सी दैट मूवी विद माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक बच्चों, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की बात करनी है आपको। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस करेक्ट करने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स लाइक वेब, एक्सपर्ट्स, एग्जॉस्टेड, ब्राउज, सर्च इंजन, कंप्लीट, कैटेगरीज, इवेंचुअली, नेटवर्क, अमेजिंग। सो इसके अंदर बच्चों कुछ वर्ड्स दिए गए लाइक वेब, एक्सपर्ट्स, एग्जॉस्टेड, ब्राउज, सर्च इंजन, कंप्लीट, कैटेगरीज, इवेंचुअली, नेटवर्क, अमेजिंग। इनकी हेल्प से आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर बच्चों वी एक्सपर्ट थ्रू या फिर वी कैटेगरीज थ्रू द कैटलॉग्स टू फाइंड द डैश ऑफ बुक्स कंप्लीट करेंगे इसी तरह से सेंटेंस को वर्ड्स की हेल्प से। नेक्स्ट यहां पर दे दिया गया है बच्चों दे वर्कड फॉर अ कॉज और साथ में आपको के पोर्शन के अंदर भी दिया गया है याहू से रिलेटेड डेविड और जेरी के बारे में। क्रिएटर्स हैं वो याहू के वर टू ऑर्डिनरी मैन एंड हु बिकेम फेमस एंड सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस एंड देयर हार्ड वर्क के थ्रू ही बच्चों उनको सक्सेस मिली है। सो कैन यू थिंक सम इंडियन यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हु ओवरकम एब्जर्व सर्कमस्टांसेस एंड बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर इनोवेटिव आइडियाज एंड डेलीग्रेंस। सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सच एंटरप्रेन्योर एंड मेक अ कॉलाज और द बुलेटिन्स बोर्ड्स प्रेजेंटेशन आपको कंप्लीट करना है। तो यहीं पर बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है, प्यारा सा चैप्टर। इसको पढ़ना है, रीड आउट करना है और जो भी यहाँ पर रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट दोज बच्चों।